Good morning, students. Welcome to the English class. Today, we are going to study a very important chapter because this chapter has a significance relevant to the condition that is prevailing these days. As you all know, we are all surrounded by coronavirus because we are not allowed to go outside. We think that my situation has so critical because this infection of virus are contagious, means virus passes one person to another person. So now the student, that is why that's why all of us become victim. Okay, similarly in this story, children will talk about a girl whose name has been put on the city in which she lived, and the name of the girl is Florence. इस girl का नाम क्या है? Florence, and she lived in city Florence. So she was actually a nurse. ये क्या है? एक nurse है, and there was a Crimean War. 1853 to 1856. So now the student, and during this years, a lot of soldiers, lot of people injured. They were not dying because of attack. They were dying because of health. Now how they were dying because of health, what are happening in that particular city, we will study in this chapter. Okay students, इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि जो भी क्रिमिनल वॉर हुआ था, उस वॉर की वजह से जो भी सोल्जर्स हैं वो डाई हो रहे थे, लेकिन वॉर की वजह से डाई नहीं हो रहे थे, किसकी वजह से हो रहे थे? डिजीज की वजह से। ओके, तो ना क्रिमिनल, आपको बताया मैंने, कंटेजियस वायरस है, जैसे दिस virus passes one person to another person. So let's start our story. This is the story of an extraordinary young woman. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक एक्स्ट्रा स्टोरी यंग वुमन के बारे में है, साधारण यंग वुमन के बारे में, who brought about huge changes in the healthcare system of इंग्लैंड. अब उसने क्या किया था कि जो जिस वुमन ने क्या किया था, इंग्लैंड के अंदर जो भी सिस्टम था, उसके अंदर हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर उसने क्या किया था, बहुत बड़ा चेंज किया था. सो नाउ शी वाज बोर्न इन फ्लोरेंस. कहाँ पर हुई थी, पैदा हुई थी? फ्लोरेंस में. फ्लोरेंस है इंग्लैंड के. इन 1820 शी वाज नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ हर बर्थ. उसका नाम किसके ऊपर रखा गया था? इस सिटी, जो सिटी का नाम क्या है? फ्लोरेंस. तो उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया था. सो नाउ दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6 एंड वी आर स्टडीइंग अ फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ओके, सो नाउ you can see the picture. Yes. Now the chapter start with a person. You can see a person. Okay, student. Now this chapter start with a person whose name is Mr. Andrew. इसका नाम क्या है? Mr. Andrew है इनका नाम. Yes. Andrew is standing there, a statue, and two children are there. एक statue है. You can see the statue and two children are there. So let's start our chapter. So now, though that the Mr. Andrews that said that I was just a boy when I fought in the Crimean War. अब ये कौन बोल रहे हैं? मिस्टर एंड्रू बोल रहे हैं कि उस समय क्या था, मैं जब एक क्रीमियन वॉर की जब लड़ा गया था, उस समय क्या था, मैं एक बॉय था. एंड लाइक द हंड्रेड ऑफ सोल्जर्स हु वर इंजर्ड, और आई वॉज brought to the hospital at Skurtry in Turkey. So ये जो कौन बोल रहे हैं? नरेटर. He is a narrator. Who is the narrator? Mr. Andrew. Mr. Andrew said that he was just a boy. जब वो एक लड़के थे, Then I fought in the Crimean War. जब उन्होंने जब लड़ाई करी थी, क्रीमियन वॉर में जब लड़ाई करी थी, and the hundred of soldiers who were injured, जो उसके अंदर जो जो वॉर हो रहा था, उसके अंदर जो भी सोल्जर्स थे वो क्या हो रहे थे? इंजर्ड हो रहे थे. एंड आई वॉज brought to the hospital, और हमको उसके बाद कहाँ पर लाया गया? हॉस्पिटल लाया गया. कौन से हॉस्पिटल, कहाँ पर लाया गया? एट स्कर्ट्री इन टर्की. स्कर्ट्री जो हॉस्पिटल है वहां का, टर्की में. सो नाउ किस समय की बात चल रही है? इन 1854 स्कर्ट्री टर्की. Yes, here you can see the picture of the hospital. The hospital was filthy. There were rats and flies everywhere. If I close my eyes, I can still remember the smell. So
Mr. Andrew said that that time the hospital was filthy. Hospitals क्या थे, बहुत गंदे थे. There were rats and flies. वहाँ पर क्या थे, चूहे और जो मक्खियाँ और मच्छर थे चारों तरफ थे. If I close, कौन कह रहा है? Mr. Andrew कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी आंखें क्लोज करता हूँ तो मैं अभी भी वो जो वहाँ की जो हॉस्पिटल की जो स्मेल है वो उसको अभी भी मैं याद कर सकता हूँ. Okay. Now, over the next few weeks I feel very ill. तो आंखें की जो वीक थे, है ना, जो जो हफ्ते थे उसमें हम क्या कर रहे थे, अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे. आई वॉच अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डाई फ्रॉम इन्फेक्शंस. यस स्टूडेंट, दे आर नॉट डाइंग ड्यूरिंग द वॉर के दौरान वो नहीं मर रहे थे, बिकॉज दे आर डाइंग फ्रॉम द infection, you know about. And he talk about the bad condition of the hospital when he admit the hospital. Okay, one night as I lay there feeling wretched. Rest means, what is the means of rest? Very miserable. एक दिन एक रात की जो बात कर रहे हैं कि जो वहाँ पर जो सो रहे थे, I saw her for the first time, the lady with the lamp. जो किस कौन बात कर रहा है? मिस्टर एंड्रू बात कर रहे हैं. वो उन्होंने कहा था कि मैंने देखा था कि एक लेडी, यस यू कैन सी द लेडी, अ लेडी विद द लैम्प. मिस्टर एंड्रू बात कर रहे हैं कि मैंने उस दिन देखा था एक लेडी लैम्प के साथ. सो नाउ I need this place spotless. Who is saying? वो कौन कह रही थी? Yes, लेडी फ्लोरेंस. जो लेडी फ्लोरेंस थी वो कह रही थी कि I need this place spotless. मतलब बिल्कुल भी एक भी स्पोर्ट्स इस प्लेस पे नहीं होना चाहिए. She made into that awful place that took control at once. As either come she referred to Florence. Okay, and barge means frightful. We can say उसके अंदर क्या होता है, she barge उसके अंदर enter हुई into that awful place. Awful मतलब frightened place. Okay, जो भी भयंकर जो place है, and took control at once. भयंकर place की बात इसलिए कर रही है because the hospital was क्या था, and the hospital was filthy and there were rats and flies everywhere, and they are the very bad condition of the hospital. So now the Florence entered into the hospital and see the awful place, and she took the control at once. Okay, students. Now we move on the next page. Yes. How are you feeling today, Mr. Andrew? Now you get his name. For the first time in our lives, she made invalids feel respected. So now, after that, after coming of the Florence, and she become the place very clean, and she go to the Mr. Andrew and she asking how are you feeling today. Mr. Andrew Mr. Andrew से पूछ रही है कि तुम आप कैसे महसूस कर रहे हो. For the first time in our lives she made, and जी Mr. Andrew बात कर रहे हैं कि लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा था, she made invalid feel respected. Yes, people made weak and disabled by the illness or injuries. as it invalid means वो क्या कर रहे थे, अपने आप को illness और illness feel कर रहे थे. तो इस समय वो क्या कर रहे थे, जब वो फर्स्ट टाइम जब वो आई थी तो जो मिस्टर एंड्रू कह रहे हैं कि उसको क्या फील हुआ था उस समय, उनके लिए एज ए रेस्पेक्ट फील हुई थी. नाउ एवरीवन soon learned that Florence wasn't like that other nurse. सभी को ये विश्वास, सभी ने ये सीख लिया था कि जो फ्लोरेंस थी वो दूसरों की तरह, दूसरे नर्स की तरह नहीं थी. ओके स्टूडेंट, व्हाई? Because she is different from other nurse, because she cares the hospital, she cares the patients. Okay, now after that Florence had always excelled at her lesson. Here the means excelled means हमेशा वो अपने जो lesson था उसमें क्या रहती थी, आगे रहती थी. Okay, she wanted to help people by becoming a nurse when she grew. जब वो बड़ी हो रही थी तो वो क्या बनना चाहती थी, एक नर्स बनना चाहती थी. And her parents on the other hand did not encourage this. लेकिन दूसरी तरफ उनके जो पेरेंट्स थे उसको इस बात के लिए encourage नहीं कर रहे थे. They hated that she wanted to become a nurse. वो ये नहीं चाहते थे, उसे करना करते थे. क्यों नहीं चाहते थे कि वो क्या बने, एक नर्स बने. Okay, they though nursing was not a good, no,
wasn't a job fit for a lady. वे नहीं चाहती थी कि जो नर्सिंग है वो एक लेडीज के लिए एक फिट अच्छी सी जॉब है, बिकॉज हॉस्पिटल्स वर डर्टी. यू नो वेरी वेल द हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन थी कैसी थी, वो क्या थे, बहुत ही डर्टी थे एंड हॉरिबल प्लेस. और वहाँ के जो प्लेस थे वो कैसे थे, बहुत ही डर्टी थे. ये किस समय की बात चल रही है, 1832. ओके, ये कब की बात चल रही है, नेवर्सायर इंग्लैंड की बात चल रही है. Now, after that, I will write to you every week. But Florence persisted. अब आपको पता है कि उनके जो फ्लोरेंस के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मना कर दिया था कि वो उसको नर्स बनाना नहीं चाहते, लेकिन जो फ्लोरेंस है उसने क्या किया, उनको परसिस्ट किया, मतलब वो अपनी ही बात पे अड़क गई. ओके, हर पेरेंट्स फाइनली अलाउड हर टू ट्रेन एज ए नर्स इन जर्मनी. तो उसके जो पेरेंट्स ने फाइनली उसको अलाउ कर दिया कि वो कर दिया कि वो ट्रेनिंग ले सकती है एज ए नर्स इन जर्मनी. जर्मनी में वो क्या कर सकती है, इसकी ट्रेनिंग ले सकती है. सो दैट टाइम द 1853 लंदन, कौन सा टाइम था वो, 1853 का लंदन. News of the Crimean War and the horrible state of British hospital reached Florence's ears, and so she set out to the battlefields, taking with her a team of 38 nurses. किसकी बात चल रही है अभी, अभी बात चल रही है कि जब आप फ्लोरेंस कहाँ चली गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए, इंग्लैंड कहाँ पर चली गई थी, वो जर्मनी चली गई थी ना. अब क्या हो रही थी कि जो न्यूज थी किसकी हो रही थी, जो वहाँ का जो क्रिमिनल जो वॉर हो रहा था, वो क्या हो रहा था, हॉरिबल स्टेट ऑफ ब्रिटिश हॉस्पिटल. जो वहाँ के जो स्टेट, वहाँ के जो हॉस्पिटल थे, वहाँ कैसी जो हॉरिबल जो कंडीशन थी, उसकी जो घटना थी वो किसके कानों में आ गई थी, फ्लोरेंस के कानों में आ गई थी. एंड सो शी सेट आउट टू द बैटलफील्ड टेकिंग विद हर अ टीम ऑफ 38 नर्सेज. और वो वहाँ से क्या चली गई, सेट ऑफ मतलब वहाँ से चली गई, वहाँ से सेट ऑफ मतलब कैसे वहाँ से चली जाना. ओके, टू द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में चली गई, किसके साथ चली गई, विद द अपने एक टीम तैयार करी. कितनी टीम, कितनी नर्सेज थी इसमें, 38 नर्सेज थी. वो अपने साथ 38 नर्सों की टीम को लेकर वहां कहां पर चली गई, बैटलफील्ड में. बैटलफील्ड, बैटल कहां पर हो रहा है, एज हम जिसकी बात कर रहे थे, एज ए क्रिमिनल वॉर की बात कर रहे हैं. सो नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम women were officially allowed to serve in the British Army. यह पहली बार था, क्या पहली बार था कि ब्रिटिश आर्मी में किसी भी एक वुमन को एज ए ऑफिशियली ऐसे सर्व मतलब सेवा करने की वहां पर क्या दे दी थी, इजाजत दे दी थी, मतलब उसको क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था. सो नाउ while you sit here, thousands are dying because of unsanitary hospitals. जबकि तुम यहाँ पर है रहे हो, लेकिन क्या है, थाउजेंड्स ऑफ डाइंग, जो जो सोल्जर्स मर रहे थे वो बैटलफील्ड में नहीं मर रहे थे, लेकिन किसके कारण मर रहे थे, अनसैनिटरी. ये यस स्टूडेंट, सैनिटरी मींस डर्टी हॉस्पिटल्स के कारण. डर्टी हॉस्पिटल्स की कंडीशंस आर वेरी डर्टी, दे नो वेरी वेल, दे आर वेरी filthy and their birds, rats and flies are there and no cleanness there. So most of the people were died because of the unsanitary hospital. Yes, every day at the Scottish hospital was a fight for a Florence. फ्लोरेंस के लिए क्या थी, एक रोज एक क्या था, उसके लिए हॉस्पिटल में एक लड़ाई, युद्ध लड़ने जैसा था. क्यों था ऐसा, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेल डॉक्टर्स हेटेड द वे शी ऑर्डर्ड देम अराउंड. क्योंकि वहाँ के जो मेल डॉक्टर थे वो उसको क्या करते थे, उससे घृणा करने लगे थे. क्यों करने लगे थे, बिकॉज शी ऑर्डर्ड देम अराउंड, क्योंकि उसको वो हमेशा क्या करती रहती थी, उनको ऑर्डर देती रहती थी. बट नन ऑफ देम डेयर्ड साइलेंस हर, लेकिन किसी में उसमें डेयर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि उसको साइलेंस कर सके. Okay student, so now after that, but Florence reports were taken seriously by the government. लेकिन जो फ्लोरेंस की जो रिपोर्ट थी वो सीरियसली किसके द्वारा ली गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा ली गई थी. They sent a team to inspect the condition at the Scully hospital. और उन्होंने क्या किया था, एक टीम भेजी थी इंस्पेक्शन करने के लिए, है ना, चेकअप करने के लिए एक टीम भेजी गई थी कि आप वहां पर जाके चेक करें जो स्कल्टी की जो हॉस्पिटल की जो कंडीशंस है. The team discovered that the hospital was built on a severe. The टीम डिस्कवर्ड, जो टीम वहां से आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या खोजा, दैट द हॉस्पिटल वाज बिल्ट ऑन अ सीवर. सीवर मींस मतलब आपको जैसे पता है ना, इन्फेक्टेड जो उसके अंदर जो बात चलती है बिल्कुल फिल्थी है ना. एंड दैट द पेशेंट्स वर ऑल ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर. और जो गंदा मींस क्या था, दूषित वाटर क्या कर रहे थे, वो पी रहे थे. सो नाउ यू कैन सी, यू कैन इमेज द कंडीशन ऑफ दिस कंट्री हॉस्पिटल. वहाँ का हॉस्पिटल तो वैसे
तो क्या था, अनटाइडी था, लेकिन वहाँ का जो हॉस्पिटल किसके ऊपर जो बना था, सीवेज पर बना हुआ था, और जो पेशेंट्स थे वहाँ पर कैसा वाटर पी रहे थे, कंटेमिनेटेड मींस क्या होता है, डर्टी वाटर क्या कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। तो नेचुरली क्या हो रहे थे, इल हो रहे थे। इसकी वजह से वो इल जो बैटल में जो सोल्जर्स है वो मतलब बैटल में लड़ाई के दौरान तो नहीं मर रहे थे, लेकिन जो हॉस्पिटल की जो डर्टी सिचुएशन थी उसके कारण वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे क्या हो रहे थे, मर रहे थे। So now Florence had tackled an important problem that more soldiers died due to disease. Okay, now you can see that the Florence had tackled an important problem. उसने एक important problem tackle करी, that the more soldiers died due to disease, इस बीमारी की वजह से मर रहे हैं, then on the battlefield, मतलब battlefield में तो इतने नहीं मरे जितने किससे मर रहे हैं, वो बीमारी की वजह से। So because of how unclean the hospital was, लेकिन इसका कारण क्या था कि द अनक्लीन द हॉस्पिटल्स वर, जो हॉस्पिटल्स थे वो क्या थे, क्लीन नहीं थे। ओके, सो नाउ शी फॉट फॉर द कॉज ऑफ बेटर सैनिटेशन इन हॉस्पिटल बोथ एट होम एंड अब्रॉड। ऑलमोस्ट एट वंस द डेथ रेट बिगेन टू फॉल। सो नाउ शी हियर रेफर टू फ्लोरेंस fought for the cause of better। अब जो फ्लोरेंस थी वो किसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, फ्लोरेंस जो लड़ाई लड़ रही थी वो लड़ाई लड़ रही थी कि जो भी सैनिटेशन मीन्स क्या होती है, मतलब हमको जो क्या करनी है, स्वच्छता रखनी है। ओके, हॉस्पिटल्स के अंदर तो वहां पर घर में भी होनी चाहिए, अब्रॉड मतलब बाहर भी होनी चाहिए। सो ऑलमोस्ट एट वंस अगर उसने ऐसा किया तो डेथ रेट बिगिन टू फॉल, जो डेथ रेट थी, जो मतलब मृत्यु दर थी, वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे क्या हो रही थी, बिगिन टू फॉल, नीचे गिर रही थी। Okay, now we move on the next phase. Yes, when Florence returned from Premier War, she was given a hero's welcome. जब वो प्रीमियर वॉर से अभी अभी हमने रीड किया था ना कि जब फ्लोरेंस थी कहाँ चली गई थी अपनी टीम के साथ, प्रीमियर वॉर में चली गई थी, एंड शी वाज गिवन अ हीरोज वेलकम। जब वे वापस आई उसका किसकी तरह वेलकम किया गया, एक हीरो की तरह वेलकम किया गया। नाउ पीपल रोट पोएम अबाउट हर एंड लेटर्स टू हर हंड्रेड्स, और जो लोग थे उन्होंने उसके लिए उसके बारे में क्या लिखा, उसके बारे में पोएम्स लिखी, उसको लेटर्स लिखी, एंड हंड्रेड गैदर टू सी हर, मतलब बहुत सारे जो 100 मतलब वहां पर बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे उनको देने के लिए। बट फ्लोरेंस डिड नॉट पे अटेंशन टू द क्राउड, लेकिन फ्लोरेंस ने वहां पर जो भी क्राउड थी वहां पर उसके ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया। So now after that in 1856, you can yes student noted the time, the two met talked about improving the state of England's healthcare system. So now the one person she did pay attention was Queen Victoria. एक जो पर्सन थी जिसने किसके ऊपर ध्यान दिया था, इस कंडीशन और इस फ्लोरेंस के ऊपर जब ध्यान दिया था, वो कौन थी, यस, क्वीन विक्टोरिया। यस, in 1856 they two met and talked about improving the state of England's healthcare system. जब वो दोनों आपस में मिली तब उन्होंने किसके बारे में बात करी, उन्होंने जो इंग्लैंड के हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसके जो उनका जो सिस्टम है उसके बारे में बात करी। ओके स्टूडेंट, नाउ आफ्टर दैट you only have to look at this, the number are true। तुम ये सब देख सकते हो, क्या देख सकते हो, yes the number are true, जो जो भी नंबर है, जो भी जो जो नंबर्स थे कि कितने डिक्रीज हो रहे हैं, कितने इंक्रीज हो रहे हैं, कितने सोल्जर्स की डाइज हो रही है, वो आप देख सकते हैं। yes, Florence soon went on to show that there was a huge decrease in death। फ्लोरेंस ने शीघ्र ही क्या शो किया कि जो देयर वाज ए ह्यूज डिक्रीज, मतलब नीचे गिरना, मतलब क्या हो रही थी, डेथ रेट जो हो रही थी वो धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। आफ्टर द हॉस्पिटल्स वर क्लीन, इसके बाद में जब क्लीन्स होने लगे, जब हॉस्पिटल क्लीन हो गए तो उसके बाद जो डेथ रेट थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। एज फ्रॉम 42.7% टू mere 2.2%। यस, यू नो स्टूडेंट वेरी वेल, जो जो डेथ रेट थी वो क्या हो गई थी, 42.7% से क्या हो गई थी, 2.2% हो गई थी। सो यार इट वाज अ वेरी बिग चेंज। ओके, बट सैडली फ्लोरेंस सून फेल वेरी सिक, लेकिन शीघ्र क्या होता है, फ्लोरेंस खुद ही क्या होगी, बहुत बीमार होगी, एंड शी कंट्रैक्टेड अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम द हॉस्पिटल एट स्कर्ट्री में, जिस हॉस्पिटल में वो क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी, वैसे वहां से कॉन्ट्रैक्टेड मींस अ नैरो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, किसको हो गया, फ्लोरेंस को। एंड इन्फेक्शन दैट ब्रॉट हर फीवर, और इन्फेक्शन की वजह से उसको क्या हो गया, फीवर हो गया, एंड सैडनेस एंड एक्सट्रीम पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको इससे क्या हुआ, बहुत ही बड़ा
दर्द हो रहा था सिर्फ बहुत ही लंबे समय तक, उसको क्या रहा, ये इन्फेक्शन रहा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। यस, द फ्लोरेंस कंटिन्यू टू फाइट फॉर इंग्लैंड्स हेल्थ केयर सिस्टम। जो फ्लोरेंस थी वो कंटिन्यू क्या कर रही थी, जो इंग्लैंड का जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसके लिए कंटिन्यू फाइट कर रही थी। यस, शी रोट बुक्स, sent nurses to help the poorest of poor and pushed for better health care for everyone। उसने क्या किया था, उसने बुक्स लिखी थी और अपनी जो नर्स थी उनको क्या कर रही थी, जो पुअर से जो पुअर, जो गरीब से भी गरीब थे, उनको क्या कर रही थी, नर्सों को भेज रही थी कि उनकी सहायता करे। एंड पुश फॉर बेटर हेल्थ केयर फॉर एवरीवन, और सभी एक के लिए वो अपनी जो नर्सेज थी उनको पुश कर रही थी कि हमारी जो जो भी जिसको भी दिक्कत है, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, उसको वो क्या कर सकते हैं, उनका जो हेल्थ केयर है उसको बेटर कर सके। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड। सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल died at the age of 90। yes the student, the फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या हुई थी, उनकी जो डेथ हो गई थी, किस एज में हुई थी, उनकी 90 की एज में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। हर वर्क टू improve hospital sanitations and healthcare revolutionized the field of nursing and change how patients were treated all over the world। yes the student, what is the means of revolutions means wholly change something। उसका जो वर्क, हर वर्क मीन्स हियर, द हर वर्क मीन्स वी कैन हियर रेफर टू फ्लोरेंस। फ्लोरेंस वर्क टू इम्प्रूव हॉस्पिटल, उनका जो वर्क था वो क्या कर रहा था, हॉस्पिटल को इम्प्रूव कर रहा था। एंड सैनिटेशन मतलब क्या कर रहे थे, उसको क्लीन कर रहे थे। एंड हेल्थ केयर रिवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड चेंज हाउ पेशेंट्स वर ट्रीटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस जो फील्ड में, जो नर्सिंग के फील्ड में उसने एक चेंज लाया। उसने क्या चेंज लाया कि कैसे जो पेशेंट्स है, जो हम उनको ट्रीट कर सकते हैं इस पूरे दुनिया में, हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको एक जो हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशंस हैं, जो पुअर कंडीशंस है, जो डर्टी जो सिचुएशंस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और उनको जो भी जो सोल्जर्स थे, जो भी जो पेशेंट्स है वहां पर एडमिट हुए, उनके साथ हम कैसे करते हैं, अच्छे से रिस्पेक्टफुली बिहेव कर सकते हैं और उनको अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं और उनकी जो कंडीशंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। सो नाउ, गुड नाइट यू ओल्ड बर्ड, यू आर द रीजन आई एम स्टिल अलाइव। So now the Mr. Andrew said that he said that the good night to the statue of the Florence Nightingale। किसकी, कौन सा स्टैचू, किसका स्टैचू है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हमने क्या बोलता है, अ लेडी विद अ लैम्प। ओके, यू कैन सी द लेडी विद अ लैम्प। से यस यू ओल्ड बर्ड, जिसको क्या बोल रहा है कि ओल्ड बर्ड, यू आर द रीजन आई एम स्टिल अलाइव। मतलब ये कह रहा है कि तुम एक रीजन थी जिसकी वजह से मैं अभी क्या हूँ, जिंदा हूँ। ये किसको कह रहा है, ये एंड्रू किसको कह रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टैचू को बोल रहे हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड द चैप्टर ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या रीड किया, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी वो एक नर्स बनना चाहती थी। नर्स बनने के बाद वो उन्होंने क्या किया, जिस स्कल्ट्री एक और जो हॉस्पिटल था उसके अंदर जाके वहाँ की जो हॉस्पिटल की जो पुअर जो बेड जो सिचुएशन थी उसको उसको उन्होंने सही किया। और वहाँ पे आपको बताएंगे जो फीमेल जो वॉर जो टाइम चल रहा था, बैटल वॉर चल रही थी, वहाँ पर जो लोग थे वो बैटल वॉर की वजह से नहीं मर रहे थे। किसकी वजह मर रहे थे, बिकॉज ऑफ द डिजीजेस। आई टोल्ड यू दैट द कंटेजियस डिजीज जैसे वायरस स्पाइस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मैंने आपको बताया था पहले, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया, जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन थी उनको क्या करा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आई और उसके बाद जो बैटल फील्ड्स में भी अपनी नर्सों के साथ गई और वहाँ पर क्या किया, अपनी पूरी हेल्प करी और वहाँ की कंडीशंस को बहुत अच्छा बेहतर किया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।